Dear students, okay, this video is for class 9th. Okay, class 9th we have the subject mathematics and chapter हमने start किया है. Okay, that is the second and part may be, this is the class 9 part, may be 5. So this is the fifth part. So let us do the topics, whatever their remaining topics of our chapter. And before that, one thing I would like to tell you. What is that? 1 minute. We have seen many topics, but now today's topic we have like factorization of polynomials. Factorization of polynomials we will see today. एंड इसमें हम एक्चुअली दिस फैक्टराइजेशन हम किस दो तरीके से देखेंगे. एक होगा हमारा क्या, फैक्टर थियरम, एंड दूसरा जो कि आपको ऑलरेडी आई थिंक यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, लाइक splitting the middle term. Splitting the middle term, this will be more appropriate with the quadratic polynomial of the form x square plus bx plus c. इस वाले फॉर्म में अगर कोई रहेगा quadratic polynomial, there this splitting the middle term will be very much appropriate and more efficient. But okay, this factor theorem if you have, okay, even you can do this factorization with the you can factorize the quadratic polynomial by using the factor theorem also. And but अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा, okay, cubic polynomial रहेगा, so this factorization means this factor theorem will be more appropriate, more efficient, okay, for the factorization of the polynomials. You got it now? What is factorization? I think you all are aware. Suppose let us take some example. You have okay like 8. so आप 8 को क्या 2 into 4 कह सकते हो. तो ये 2 और 4 इसके क्या है, फैक्टर्स है. एंड 8 इज 2 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, इवन 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8. बट अगर आपको इसको दूसरे भाषा में कहना है, दूसरे लैंग्वेज में, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. दिस ऑल्सो यू कैन से. बट वी आर लर्निंग द फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मोर फोकस ऑन द सेंटेंस लाइक 2 is a factor of 8 and 4 is a factor of 8. Okay, these sentences will be more focused in this video because we are dealing with the topic that is the factorization of some polynomials. So let us take another page and okay, before that मैं आपको कुछ statement factor okay theorem, as I told you we will do factor theorem. so factor theorem का मैं आपको statements लिखा देता हूँ. what is that? if okay p of x okay is a polynomial ठीक है of degree, okay, डिग्री इसका क्या होना चाहिए, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 वाले का या फिर 1 से ज़्यादा वाले डिग्री अगर कोई पॉलिनोमियल है. एंड ओके अगर कोई ए जो है इज़ ओके ए इज़ एनी रियल नंबर ले concentration focus of this sentence, a is any real number. I am not saying that a is any integer or a whole number. I am saying that a is any real number. then तो क्या होता है यहाँ पे, what यहाँ पे एक पहला कंडीशन हमारे पास ये होता है कि p of okay x is x if a is any real number, x minus a is a factor of p of x. और जब ये a होगा p of a, if ये p of a जो पोलिनोमियल है उसमें अगर आप वो नंबर जो है वो रियल नंबर अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो
और पी ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर आपके पास वैल्यू आ जाता है 0, देन व्हाट यू कैन से x माइनस ए, एक मिनट, ओके, x माइनस ए what is a factor of what, p of x is a factor of p of x. Okay, so this you can say. And another इसके just opposite है, if अगर x minus a, if you are able to find out कि x minus a is a factor, okay, is a factor of p of x, देन व्हाट यू कैन से कि p में अगर वो a मतलब इसका 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो p ऑफ a विल बिकम 0. दोनों देखिए, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. फैक्टर थ्योरम में वी विल लर्न, ओके, हाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ अगर मैंने बता रहा हूँ कि इफ़ p ऑफ x इज़ ए पॉलिनोमियल, ओके, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस कंडीशन यू शुड रिमेंबर, ओके. एंड a इज़ एनी रियल नंबर, मैं बोल रहा हूँ. एंड इफ़, ओके, अगर मान लीजिए a रियल नंबर है, सपोज 4 ही टेक, 4 ले लो. अगर आप 4x के प्लेस में जहाँ पे है वहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करते हो, ओके, मीन्स a सब्स्टिट्यूट करते हो, तो p ऑफ 4 बिकमिंग 0, तो व्हाट यू कैन से x माइनस 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. मीन्स a अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो p ऑफ a बिकम्स 0 हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. और जस्ट इसका अपोजिट हम इफ़ ये है तो देन ये है, लेकिन अभी सेकेंड वाले में इफ़ ये वाला होगा. इफ़ x माइनस ए अगर आप प्रूफ कर देते हो कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इफ़ यू आर proving, if somehow you are able to prove that, okay, x minus a is a factor of p of x, then definitely this p of a will become, okay, 0. सो चलिए हम अपने अगले पेज की तरफ चलते हैं. इसी चीज़ को अगर मैं चाहूँ तो प्रूफ भी कर सकता हूँ. ओके, एग्ज़ाम में ये प्रूफ भी पूछता है कि प्लीज़ प्रूव द, ओके, व्हाट फैक्टर थ्योरम. सो बाय द, एक मिनट मैं थोड़ा एडजस्ट कर. ओके, यहाँ पे अगर मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसको, प्रीवियसली यू हैव सीन, ओके, रिमाइंडर थ्योरम. इसमें क्या होता है, जो डिविडेंड, ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू जो डिवाइजर होता है, उसमें अगर क्वेश्चन ये करते हैं तो ये आपने देखा है, इज़न्ट इट. तो हम इसी चीज़ को हम यूज करेंगे अपने इस प्रूफ में. देखिए, सब कुछ सिंपल है, एक दूसरे से अटैच है, बस आपको समझने की देरी है. p ऑफ x पॉलिनोमियल जो है वो इज इक्वल टू, एज आई टोल्ड यू, ओके, x माइनस a इज़ अ फैक्टर. ओके, सो दिस फैक्टर मीन्स वो फैक्टर है, दैट मीन्स वो डिवाइड करता है. लेट अस टेक, अगर 8 का फैक्टर 2 और 4 है, मीन्स 8 को 2 डिवाइड करता है, सिमिलरली 8 को 4 डिवाइड करता है. यू गॉट इट. सो वही मैं बोल रहा हूँ कि if x minus a is a factor, then x minus a will also divide p of x. कुछ उससे q of x उसमें क्वेश्चन और समवेयर, ओके, रिमाइंडर p of a. मैं p of a क्यों लिख रहा हूँ, ओके, बिकॉज p of a will become 0. सिंस यहाँ पे देखिए, if p of a is equal to 0, as I told you, then ओके, जो p ऑफ x है, if p ऑफ x इज इक्वल टू, ओके, x माइनस a, ओके, और ये प्लस 0 हो जाएगा, तो आपका p ऑफ x इंटू q ऑफ x, ओके, q ऑफ x रहेगा, विच शोज दैट x माइनस, ओके, इट शोज दैट x माइनस a what is a फैक्टर ऑफ व्हाट, p ऑफ x. ये रिमेंबर, याद करिए, मैंने बताया था कि p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन a इज एनी रियल नंबर, देन इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. यहाँ पे देखिए, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, ओके, मैं इसको यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, ओके. सो प्रीवियसली जिसमें आपने देखा था कि
फैक्टर थ्योरम में ही हमने कुछ ऐसे पढ़ाया था कि कंडीशन मैंने लिखा था पहला, इफ़ पी ऑफ एक्स मतलब ए इज़ एनी रियल नंबर, अगर ये वैल्यू 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए इज इक्वल टू इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो सेम थिंग वी आर यूजिंग हियर। ओके, मैंने इसको बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी कैन राइट दैट p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू q ऑफ x प्लस p ऑफ a ऐसे। और हम जब हमारे थ्योरम में पहला स्टेटमेंट दिया कि अगर p ऑफ a 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये किससे ऐसे हो जाएगा, ओके, इज़न्ट इट। तो हम बोल सकते हैं ना कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ, तो हमारा ये x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x प्रूफ हो गया। ओके, सेम जस्ट इसके अपोजिट हम यहाँ पे सेकेंड बिट में प्रूफ करेंगे। इसमें क्या कहेंगे कि सिंस अगर हमारे पास x माइनस ए जो है वही है एक फैक्टर, इफ़ समहाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ, देन अब हम क्या करेंगे, किसका फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x को हम इस टर्म में लिख लेंगे। अगर फैक्टर है तो मतलब समहाउ g ऑफ x कुछ तो में मल्टीप्लाई हुआ तभी तो वो इक्वल टू आएगा। ओके, सो सेम हियर फॉर सम पॉलिनोमियल g ऑफ x, फॉर सम पॉलिनोमियल g ऑफ x, in this case p of a, okay, is equal to a minus a, it is becoming, अगर ये x माइनस ए इज़ अ फैक्टर है, अगर x माइनस ए, इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर, तो हम इसका 0 फाइंड आउट करेंगे ना। तो 0 फाइंड आउट करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा इसका, a। तो जब हम p ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो क्या होगा, p ऑफ a कैलकुलेट करोगे तो a माइनस a, isn't it? So it is becoming g, और ये g of x है इधर, g of a is becoming 0। so हमारे पास a माइनस a is equal to p of a is 0। तो ये जो प्रूफ है वो दैट इज़ इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रूफ, जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल सा लॉजिक है। by using the reminder theorem we can able to express p of x is equal to x minus a q of x plus p of a। okay, if p of a जैसे कि हमारे थ्योरम में दिया है p of a is equal to 0, देन हम इसको ये p of a 0 हो जाएगा तो हम इसको ऐसे करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि x minus a is a factor of p of x। तो ये तो हम इफ़ जस्ट इसका अपोजिट है, अगर somehow we are able to find out x minus a is a factor of p of x, then p of x को हम क्या लिख सकते हैं, x minus a into g of x for some पॉलिनोमियल ये। अब हम देखते हैं कि हमारे पास x माइनस ए अगर क्या है, 0 है, तो हमारे पास x क्या होगा, सॉरी 0 क्या होगा, 0 क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, a होगा। तो a होगा तो मतलब p ऑफ a, हम इसको लेटेस्ट फाइंड आउट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x है यहाँ तो a माइनस ए, g ऑफ x मतलब g ऑफ a, ये हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 0 इट बिकम्स 0। तो यू आर गेटिंग p ऑफ a आ गया ना 0। ओके, तो यही तो था थ्योरम, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a 0, अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर, दैट्स इट, नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। चलिए हम कुछ सम करेंगे, बट बिफोर ओके तो क्वेश्चन है एग्जामिन, हमें ही चेक करना है वेदर ओके x प्लस 2 is a factor of what, a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। हमें ही ये चेक करना है कि क्या ये x प्लस 2 जो है वो एक फैक्टर है। ओके, सो अगर जैसा कि जानते हैं कि अगर हमको चेक करना है x प्लस 2 जो है वो एक फैक्टर है, अगर ये फैक्टर रहता तो हम इसको 0 से ही इक्वेट करते, तो हमारे पास ओके 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2, इजंट इट। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट, इसमें हम बोलते हैं ना कि इफ़ दिस इज़ अ फैक्टर देन p ऑफ a इज इक्वल टू शुड बी 0। वो p ऑफ a क्या होता है, a x माइनस a, हम जब 0 करते हैं तो ये x माइनस a का वो क्या होता है, 0 होता है।
सो यू गॉट इट। यहाँ पे वही चीज़ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए, अगर हमारे को बोला गया है कि x+2 इज़ अ फैक्टर एग्जामिन करना है, देन इसका पहले हम जीरो फाइंड आउट करेंगे। जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम वी विल इक्वेट दिस इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, एंड देन वी विल पुट दिस वैल्यू। सो वी विल कैलकुलेट p ऑफ -2। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे -2 होल क्यूब, ओके, +3 इंटू -2 दैट इज स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 दैट इज़ +6। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड दिस विल बिकम -10 प्लस 6। ओके, समवेयर मिस्टेक। ओके, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा ये। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस, ओके, व्हाट 18, और ये प्लस हो जाएगा 18, तो दिस बिकमिंग ओके 0। तो आ गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। सो वही मैं बोल रहा था कि जब p ऑफ 2 0 ही हो गया, सो बाय फैक्टर थियरम, okay, we can say, I will change the color here, okay, so by what factor, okay, theorem x+2 जो होगा is a what factor of p of x the polynomial which you have। so ये हो गया हमारा एग्जामिन। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं कुछ दूसरे प्रॉब्लम पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ़ x-1 जो है वो इज़ अ व्हाट फैक्टर ऑफ, वी हैव अ पॉलिनोमियल दैट 4x³ प्लस 3x² माइनस ऑफ 4x प्लस, ओके, सिंस this is given x-1 is a factor, so ये यहाँ पे p of, ओके, यहाँ पे x माइनस a, तो p of 1 जो होगा इज इक्वल टू 0 होगा। तो p of 1 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k एंड वी विल इक्वेट दिस इक्वल टू 0। फॉर्मेशन हो गया इक्वेशन का। चलिए हम कलर चेंज कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, k इक्वल टू 0, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब 3 उधर जाएगा तो वो माइनस में चले जाएगा। सो व्हाट इज़ बिकमिंग, आंसर आ गया k इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 3। यही तो k फाइंड आउट करना था यहाँ पे, k इक्वल टू 3। लिसन, कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स। अगर आपको सबसे ज़्यादा है कि सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाता है मैथमेटिक्स अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। इससे कुछ भी ओके, यहाँ तक तो हमने फैक्टर थ्योरम यूज़ करके फैक्टराइजेशन देखा। नाउ वी विल सी सम ओके फैक्टराइजेशन बाय ओके व्हाट विच मेथड, बाय splitting the middle term। हम splitting the middle term, और as I told you this will be more efficient, more appropriate of the quadratic polynomial of the form x² plus bx plus c के जो ये फॉर्म में रहेंगे उससे ज़्यादा होगा। सो लेट अस डू दिस। ओके, लेट इट हमारे पास कुछ है यहाँ। सो हमारे पास ये है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c बाई स्प्लिटिंग। देखिए, लेट कर लेते हैं यहाँ पे क्या, लेट ओके इट्स फैक्टर्स जो भी हैं हम पहले ही लेट कर लेते हैं क्या, px प्लस q एंड वन मोर फैक्टर rx प्लस s। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, वेरिएबल है x, यहाँ पे भी वेरिएबल है x, और ये जो p q r और s है ये सभी क्या है, कांस्टेंट टर्म हैं। तो हमारे अगर हम सपोज लेट कर दिए कि फैक्टर हो गया हमारे पास ये ही कौन सा, लेट इट्स फैक्टर विद px प्लस q एंड rx प्लस s, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं px प्लस q इंटू ओके व्हाट rx प्लस s, और ये पोलिनोमियल x यहाँ पे क्या x² प्लस bx प्लस c इस साइड में हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास p r(x² हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके p s प्लस क्या q r
ओके इंटू एक्स हो जाएगा, आप करके देख लो, यही आएगा, और ये क्यू इंटू एस हो जाएगा। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये साइड हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, पी आर आ रहा है ना, ए इक्वल टू पी आर, ये ए और यहाँ पे ये पी आर, तो आ गया ए इक्वल टू पी आर। ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स अगर करते हैं सेम अगर एक्स के कोएफिशिएंट्स अगर आप कंपेयर कर रहे हो, देन यू विल गेट, यहाँ पे देखिए बी क्या आ जाएगा, पी एस प्लस क्यू आर आ जाएगा ये comparing the coefficients of this x, and same comparing the constant term, okay, constant term को अगर आप देखते हो तो c इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, q s। ये तीन चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मीनिंगफुल है। comparing the coefficients of x square a equal to p, comparing the coefficients of x you will get the b is equal to ps plus qr, comparing the constant term c is equal to qs। ये तीन चीज़ आ गया। चलिए अब आपके आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे this shows us that what, this shows us that क्या, कि b जो होता है is the सम ऑफ, जो b होता है वो सम ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से, ps और qr का होता है, whose product is क्या होता है, pr इंटू qr। अगर आप करोगे तो आपको क्या आएगा, a एंड c। देखिए ये किसका है, a, ये क्या है, c, तो आप क्या आएगा, AC। ओके, b जो है इन दोनों का सम है, b जो होता है इन दोनों का सम होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो AC होता है। ये हुआ। चलिए अब हम कुछ करते हैं। देयरफॉर टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस बी, जो भी एक एग्जांपल पे आपको समझ में आएगा कम्प्लीटली। अगर आपके पास 6 स्क्वायर प्लस 17 क्या है, x प्लस कुछ 5 है, आपको कहा जा रहा है कि बाय स्प्लिटिंग you have middle term, you have to find out the factors or you have to do the factorization। तो आप अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास ए एक्स स्क्वायर मतलब टू नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट आप पी प्लस क्यू आपके पास क्या है, 17 है, मिडिल टर्म तो यही है, एज आई टोल्ड यू ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी जो होता है वो दोनों नंबर का क्या होता है, सम होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो मैं बोल रहा हूँ अभी कि क्या, इफ़ वी कैन फाइंड टू नंबर्स, अगर हमारे पास कुछ p और q है तो p प्लस q हमारे इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो 17 है, एंड हमारे पास p और q का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 6 इंटू 5, दैट मीन्स क्या है, हमारे पास 30 है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ करेंगे, इस 30 को हम हम इस 30 का फैक्टर्स चेक करेंगे। लेटस चेक फैक्टर्स ऑफ 30। तो हमारे पास फैक्टर पेयर ऑफ फैक्टर्स 30 के हमारे पास कुछ लाइक फैक्टर्स है, 2 से भी कैंसिल हो जाता है, ये फिर 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 15 से भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द समवट फैक्टर्स। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से करेंगे, एक जो 2 और ये सब क्या फैक्टर्स है, जिसमें एक पेयर जो है 2 और 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 15 ऐड करोगे तो 17 भी आएगा। सो ये जो होगा वो हमारा सक्सेस हो जाएगा इससे, इस वाले पेयर से। तो हम चलिए अब आगे लिख देते हैं अपने स्टेप्स। हम क्या करेंगे कि ये दिस इज़ इक्वल टू, हम 6x स्क्वायर को वैसे ही रहेंगे, वी विल स्प्लिट दिस मिडिल टर्म एज द
2x प्लस 15x प्लस 5 आ गया। जब 2x प्लस 15x हम इसमें कॉमन कर लेंगे कितना 2x, तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 1। सेम हियर ये विल इफ़ यू विल टेक 5 मतलब 3x प्लस 1, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। बाई यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड वी आर एबल टू डू दिस फैक्टराइजेशन। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। चलिए और आगे के कुछ प्रॉब्लम्स है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे पास ये जो क्वेश्चन था अभी रिसेंटली हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमने उसको फैक्टर कर लिया, 6x² प्लस 17x प्लस 5 को हमने फैक्टराइज कर लिया, बट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम में अब देखिए क्या किया जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एज आई टोल्ड यू आपको इसमें क्या करना, कुछ कॉमन कर लेना है, ठीक है। 17/6 x प्लस 5/6 जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट दिस मच। ये 6 के क्या है मल्टीपल में आ गया, 6 के जब मल्टीपल में आ गया तो मतलब 6 ऑफ क्या हो गया p ऑफ x के फॉर्म में है। अगर देखिए यहाँ पे एक a एंड b आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x, लेट अगर a और b जीरोज ऑफ ओके व्हाट p ऑफ x है, मतलब x माइनस a एंड जो है x माइनस b जो होगा वो फैक्टर होगा कि नहीं होगा? यस, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो हम 6 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी समझेंगे हम इसको, ठीक है, यही तो समझेंगे। यहाँ पे x माइनस ए इंटू 6 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, लेट अस लुक सम पॉसिबिलिटीज़ फॉर ए एंड बी। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कांस्टेंट टर्म जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास ये वाला हम इससे कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कांस्टेंट, ओके, कंपेयर कांस्टेंट टर्म। ए बी हमारे यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई और ये होगा 5 और 6। तो हमें ए और बी कुछ ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिसका मल्टीपल क्या होना चाहिए 5/6 होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला था कि जो वो टर्म होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 30 को आपने फैक्टराइज किया था, 6 हुआ था, 5 हुआ था, या फिर कोई एक और क्वेश्चन में आपने किसको फैक्टराइज किया था। यहाँ पे देखिए दिखलाता हूँ अभी आपको। तो देखिए 30 को आपने 2, 3, 15 में फैक्टराइज नहीं किया था, ओके। या फिर कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए फैक्टराइजेशन वाले प्रॉब्लम में। यहाँ पे होगा। चलिए, तो ये 5/6 का आपको मल्टीपल्स या फैक्टर्स ढूंढना है। ये देखिए, आप 1/2 से आप 5/3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 1/2 भी हो गया, 5/3 भी हो गया, ये क्या है प्लस में है। तो अगर आप -1/2 में -5/3 में मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट व्हाट 5/6। तो ये प्लस और माइनस में भी चले जाएगा, ये व्हाट। सो एक ये प्लस और माइनस हाफ, प्लस और माइनस 5/3। वैसे आपके पास बहुत सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे, लाइक -1/3 प्लस और माइनस 1/3, ओके, एंड प्लस और माइनस 5/2, ठीक है। इन चारों से हमको ये दोनों आया ना, तो वैसे ही हमारे पास अब ये सब भी है वैल्यू जिससे हमें 1/6 आ सकता है। तो हमारे पास व्हाट वी कैन राइट द मल्टीपल्स, ओके। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके फैक्टर्स, लाइक सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 1/2 प्लस और माइनस 1/2 प्लस और माइनस 1/3 प्लस और माइनस 5/3 प्लस और माइनस 5/2 सो ऑन एक्सेट्रा। लेकिन बाई चेकिंग, अब आपको यहाँ पे चेक करना है ओके किस किस का, जब आप P of 1/2 करते हो, ओके, P of 1/2 करते हो तो ये हमारे पास
ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ। और हमारे पास जो प्रीवियसली था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x, व्हाट इज़ दैट, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6, यही तो था, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6, यही तो है पी एफ एक्स। तो इसके जो जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे तो वो ये होंगे। तो हम इनमें से कुछ चेक करेंगे। पी ऑफ 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, दिस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6, ठीक है। तो जब आप इसको क्लियर करोगे, ये कभी जीरो होगा ही नहीं। पूछो कैसे, क्योंकि इसमें कहीं पे भी निगेटिव साइन नहीं है। ओके, कहीं पे भी निगेटिव साइन नहीं है, तो ये जीरो कैसे होगा, हाउ इट विल फॉर्म जीरो, इट विल नेवर फॉर्म जीरो। इसकी वैल्यू कभी जीरो आएगी ही नहीं आएगी, क्योंकि ये जीरो है नहीं है, ये जीरो है नहीं है, ये जीरो है नहीं है, और कहीं पे भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है, पूरे पॉजिटिव में वैल्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली ये जीरो से बड़ा होगा, मतलब जीरो नहीं होगा इन एनी केस। लेकिन जब आप अगेन कुछ रैंडमली आपको चेक करना है इन फैक्टर्स में से उठा के, तो जब आप -3 करोगे यू विल गेट जीरो, ऑब्वियसली यू कैन चेक इट आउट। सो हमारे पास एक फैक्टर आ गया। जब x, ओके, ये x के प्लेस में जब आप -1/3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, दैट मीन्स x प्लस 1/3 जो है, प्लस 1/3 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ व्हाट, दैट पोलिनोमियल, ये वाले पोलिनोमियल का। अब समझ में आ गया, अभी आपके पास आ गया, एक तो फैक्टर आ गया ना क्या, we have been able to calculate x plus x is equal to 1/3 is a factor of x square plus 17/6x plus 5/6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अब, बाय यूजिंग द, जो कि फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा है। तो आप देखिए यहाँ पे, और हमारे पास प्रीवियसली और कुछ वैल्यूज़ थे, 5/2 भी था। तो हम p ऑफ, ओके, 5/2 मतलब 5/2 इसमें जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू भी आपको जीरो आएगा। यू कैन चेक इट आउट, रैंडमली चेक करना है कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ में से, तो ये भी वैल्यू जीरो आएगा। मतलब क्या, x माइनस में, सॉरी, ये माइनस वाला साइन यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा, ये वाला जो है ना, ये 5/2 का माइनस वाला साइन जो है वो इसमें सक्सेस करेगा, -5/2। तो x प्लस 5/2 जो हैगा आपका क्या हो जाएगा, एक अनदर फैक्टर हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने थे, हमारे पास 6 इंटू में थे ये, तो हम लिखेंगे 6 इंटू एक्स प्लस वट, दिस 1/3 और x प्लस 5/2। ओके, यहाँ पे हमारे पास था 6x स्क्वायर प्लस 17x था ना, 17x प्लस 5 था, यही तो था हमारे पास। तो इसके फैक्टर्स हमने ये कैलकुलेट कर दिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, ये हमारे फाइनल फैक्टर्स आ गए। यही तो आया था बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड में। ओके, यहाँ पे देखो, बाय स्प्लिटिंग में 3x प्लस 1 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 2x प्लस 5, ये देखो 3x प्लस 1 2x प्लस 5। तो यही है कैसे हमको जब फैक्टर थ्योरम यूज़ करना रहता है, तो हम एक कोई सा भी एक फैक्टर हम कैसे भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं यहाँ पे। Suppose we have equation y square minus, okay, 5y plus 6, okay, हमको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग what, फैक्टर थ्योरम। ओके, हमारे पास ये हो गया p ऑफ y, अब x थोड़ी है y है, तो हम इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। हमारे पास p ऑफ y कुछ पॉलिनोमियल ऐसे है, हम लेट करते हैं कि हमारे पास a और b जो है वो इसके फैक्टर है, मतलब ये a और b, तो ये y माइनस a एंड y माइनस जो b है ये
सिमुलेट करेंगे कि ए और बी वो वैल्यू है जिससे वाई माइनस से वाई माइनस बी वो उसके क्या होंगे, फैक्टर्स है। तो हम ये पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए वाई माइनस बी, हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बी है, हम इससे 6 से कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा, ए बी इक्वल टू 6 आएगा। हमको इसके फैक्टर्स चेक करना है, तो 1 2 3 है, जब इसके 3 फैक्टर्स है 1 2 3, तो हम इसको ओके चलिए हम पी ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 और 5 2 जब 10 और ये हो गया 6, तो ये 6 4 10 अब 10 कैंसिल, मतलब पी ऑफ 2 0 हो गया। सिमिलरली आपको पी ऑफ 3 भी चेक करना है, वो भी आपको यू विल गेट 0 ओनली। सो जब पी ऑफ 2 इज 0 है तो पी वाई माइनस 2 इज अ फैक्टर, what y minus 2 is a factor, p of 3 is 0, तो y minus 3 is a factor. So what we can say, okay, we can say finally y square minus 5y plus 6 जो है इसके फैक्टर्स है y minus 2 और y minus 3, ये y है। तो ये हो गया हमारा क्या, यूजिंग द फैक्टराइजेशन, आई एम नॉट यूजिंग द स्प्लिटिंग, आई एम यूजिंग द हम कैसे भी करके एक फैक्टर हम वी विल कंपेयर दिस ए बी इक्वल टू 6 द कांस्टेंट टर्म, हम इसके फिर फैक्टर्स चेक करते हैं और ये फैक्टर्स में से लेकर रैंडमली सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जिस वैल्यू के लिए भी कोई एक भी फैक्टर 0 हो जाएगा तब हम इसको आगे वैसे सॉल्व करते हैं। तो यही है, ये फैक्टर थ्योरम था और कुछ स्पेशल नहीं था। अगर एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है लाइक एक्स क्यूब माइनस ओके 23x स्क्वायर, फिर हमारे प्लस 142x है और हमारे पास 120 है। हमको भी इसको फैक्टराइज करना है, कौन सा मेथड यूज़ करके, एज आई टोल्ड यू ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो मेथड है विल बी नॉट बी एफिशिएंट। तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम फैक्टर ओके थियरम पे ही जाएंगे। एज आई टोल्ड यू इन फैक्टर, जब भी आप फैक्टर थ्योरम यूज़ कर ट्राई टू फाइंड आउट ओके एटलीस्ट वन फैक्टर, कैसे भी करके एक फैक्टर सोचने की उसमें हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करने की ज़रूरत है। तो जब आप ये करने के लिए आप ट्राई करोगे देन बट कैसे आप सोचोगे, ये देखिए हमारे पास ये जो -120 है, आई टोल्ड यू कॉन्स्टेंट टर्म को ही पकड़ना है। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -120 है, इसके रैंडम वैल्यूज़ 1 फैक्टर है, 2 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, इवन 4 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, एंड सो मेनी नंबर्स आर देयर, इवन आई थिंक ये 10 से भी कैंसिल होगा, 12 से भी कैंसिल होगा। ओके वैसे बहुत सारे नंबर है, तो ये ही एक नंबर ले लो ना भाई। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर +1 से ये कैंसिल होगा तो P of 1 लेट अस चेक करते हैं, तो ये 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस ये 23 भी हो जाएगा, ये प्लस 142 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 143 प्लस में ये वाला ये मिलके और ये वाला ये दोनों मिलके -143, तो ये हो जाएगा 0। तो P of 1 इक्वल टू 0 हो गया। जब P of इक्वल टू 1 0, तो बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम आई टोल्ड यू x माइनस 1 जो होगा वो इज अ फैक्टर। तो वी आर एबल टू फाइंड एटलीस्ट वन फैक्टर, इजंट इट। तो हम अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स क्यूब -23 वट एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है 142x और ये -102 है। वी नो दैट x माइनस 1 जो है वो एक फैक्टर है, तो वी विल इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे सो दैट हमारा x माइनस 1 के टर्म में आया जाए। तो ये एक्स क्यूब माइनस हम इसको
ओके, किस टर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और ये 22x² लिख देंगे। कोई एनी प्रॉब्लम? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम x² हम यहाँ पे कॉमन करेंगे तो ये x-1 के फॉर्म में हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी आर ओके डूइंग लाइक दिस। मैंने 23x² को इसमें इसलिए डिवाइड किया है। और अब हमारे पास यहाँ पे 142x भी है और ये 120 है। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने x² कॉमन किया तो ये इतना बच गया। अब देखिए यहाँ पे अब हमको कुछ इसको भी डिवाइड करना है, किसको, 22, और ये इसको भी हमको डिवाइड करना है कुछ स्पेशल टर्म्स में। चलिए हम सो दैट अगेन यहाँ पे हमको क्या ये 22x² ऐसे लिख देते हैं। ये देखिए 22x कर सकते हो प्लस 120x। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? ये मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि ये -22x जब यहाँ से कॉमन करोगे तो यहाँ पे x और ये -1 हो जाएगा। इन दोनों में जब आप कॉमन करोगे तो ये x-1 के टर्म में आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम वी नो दैट दिस x-1 इज़ अ फैक्टर, वी विल ट्राई टू ब्रिंग ओके दिस इक्वेशन इन सच लाइक दैट सो दैट वी कैन टेक कॉमन x-1। अब हमारे पास ये हो गया और यहाँ से मैं सिंपली 120 कॉमन कर लूँगा तो ये भी तो फॉर्म हो गया। तो अब सभी टर्म्स में x-1 है तो x-1 को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ हो गया x², यहाँ हो गया 22x, ये हो गया 120। ठीक है, अब हम देखिए x-1 ये हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, इसको डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिटिंग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 10 20 ओके 12 में जा सकता है, यस 12 और ये 10x। ओके यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स ओके प्लस 12 इंटू 10 दैट बिकम्स 120x²। तो ये सही है। तो यहाँ पे x ये हो जाएगा x-12, x कॉमन करोगे तो ये -10 कॉमन करोगे तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। तो ये इसमें है यहाँ पे x-1 चलते आ रहा है। तो फाइनली व्हाट यू कैन से x-12 ओके ये हो जाएगा x-1 इंटू x-12 इंटू x-10। तो ये हो जाएंगे उसके फैक्टर्स, किसके, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे ये। तो हमारे पास देखिए हमने यहाँ पे कौन सा फैक्टर यूज़ किया, फैक्टर थ्योरम यूज़ किया। ठीक है, प्रीवियसली सी है हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था ना ये वाला, तो हम इसको एक फैक्टर यूज़ कर लिए x-1। तो x-1 हमने कैसे फाइंड आउट किया, हम जब ये 120 कांस्टेंट टर्म को लेके उसके रैंडमली फैक्टर्स क्या होते हैं उस पर चेक किया तो 1 ही हमारे पास 0 हो गया। तो जब 1 0 हो गया तो वी कैन से x-1 इज़ अ फैक्टर। तो फिर हमने इसको x-1 के टर्म में तोड़ना स्टार्ट किया। तो x-1 इसको पहले हमने इस टर्म को मैंने तोड़ा ऐसे इन दोनों में, फिर हमने इसको 142 को तोड़ दिया ऐसे। तो सब में x-1 कॉमन कर लिया। अब ये बच गया तो ये तो स्प्लिटिंग मेथड से हमारा आ सकता है। तो ये x-1, x-12, x-10। तो वी हैव डन दिस फैक्टराइजेशन बाय 2 मेथड्स। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द एक मिनट एक पेज ले लेता हूँ। फैक्टराइजेशन हमने सिखाया आपको किससे, एक फैक्टर थियरम से और दूसरा स्प्लिटिंग मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो है वो मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² bx + c के फॉर्म में ज़्यादा मोर एफिशिएंट रहेगा, मोर सफिशिएंट रहेगा इधर। लेकिन जब आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा देन यू हैव टू गो फॉर द फैक्टर थियरम। ओके, इन द एग्जामिनेशन दे विल क्लियरली मेंशन दैट वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के ये नहीं बोलेंगे कि मिडिल टर्म से जाओ और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, बोलेंगे फैक्टर टर्म से जाओ। सो यू हैव टू टेक बी केयरफुल। So please try to solve the other problems of the chapter okay our textbook and कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ टेक द, आप उसे सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है तो फिर मुझसे पूछिए, पिक मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।